students, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to continue with our chapter 4 OCM organization. Up to now, in the first three parts, we have discussed about the concept and formation of organization, the structures of organization like linear organization, functional organization, formal organization, and informal organization. Today we are going to start with the most important type of organization structure, that is matrix organization. This is important from the examination point of view as well as from the exposure of outer business world. Today or nowadays in majorly of the organizations, matrix organizational structure is used. So what is matrix organization? Let us see. Matrix organization is a modern kind of organization. It has two types of structure. Simple kind of structure related to departmental managers who are involved in decision taking, and second is related to project managers who are involved in solving technical problems. Means two structures. First is simple kind structure for departmental managers whose work is decision making, and second one is project managers who are involved in solving technical problems, and the combination of both these results into matrix organization. Okay. So what is matrix organization? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो आज की तारीख में, आज की दुनिया में बहुत ही फेमस और बहुत ही सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाने वाला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। और ये जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो दो चीज़ों को मिक्स करके बना हुआ है। एक स्ट्रक्चर जो है जिसके अंदर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के ऊपर फोकस किया गया है और उनका काम जो है वो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस संभालना, और दूसरा पार्ट जो है इसका वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स के ऊपर फोकस करके बनाया हुआ है जिनका काम है कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करना। तो फॉर एक स्ट्रक्चर जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग के रूप में ध्यान रखते हुए मैनेज करते हैं, और दूसरे में प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मैनेज करते हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर को मिक्स करके जो बनाया हुआ है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। Now let us see about the formation of matrix, how it is formed. In matrix organization we find the combination of work based and project based organization. In this type of organizations, each project manager is given different responsibility, as many project managers are appointed as per the number of projects. The responsibility of project manager is to complete the project successfully in time. The experts of different functional departments are appointed for project work. These experts are obtained from different work area. When the work is completed, they are sent back to their respective areas. So what is matrix? How it works? First thing in today, it is combination of work based and project based. Second, every project has been appointed a project manager with a different responsibility. So number of projects is equals to the number of project managers. Means each project have a project manager appointed to it, and the responsibility of project manager is to complete the project successfully on time. The experts are appointed for different departmental project work, and these experts are obtained from different work area. When the work is completed, they are sent back to the respective work areas. So this is how a matrix department or matrix organization is formed. Okay, so मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है? सबसे पहले तो ये हमें पता चल चुका है कि ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें वर्क बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड को साथ में किया जाता है। वर्क बेस्ड के लिए डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं जिनका काम है डिसीजन प्रोसेस को देखना। प्रोजेक्ट बेस्ड में प्रोजेक्ट मैनेजर्स एम्प्लॉय किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं जिनका काम है टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। सबसे फर्स्ट थिंग, ये कॉम्बिनेशन है वर्क बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर का, प्रोजेक्ट बेस्ड और वर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का। सेकेंड थिंग, इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके अंदर हर प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर डिजाइन होता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंटेड होता है। तो जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे उतने प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी अवेलेबल होंगे, उतने प्रोजेक्ट मैनेजर्स को उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई होगी। ठीक है। थर्ड थिंग, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनका मेन काम क्या होता है? उनका मेन काम ये होगा कि जिस प्रोजेक्ट के लिए उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए, और उसके लिए
जो एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, उनको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया जाता है। मीन्स इसके अंदर जो डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज हैं उनको ब्रेक करके किसी भी डिपार्टमेंट में जो एक्सपर्ट है उसको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया जा सकता है। और लास्ट थिंग कि जो वर्क एरिया है जिनके लिए एक्सपर्ट्स को प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया था, वो वर्क अगर कंप्लीट हो जाता है तो वर्क कंप्लीट होने के साथ ही वो जिस वर्क एरिया से आए थे, वो एक्सपर्ट जिस वर्क एरिया से लाए गए थे या जिस डिपार्टमेंट से लाए गए थे, वहाँ पे उनको वापस अपॉइंट कर दिया जाता है, उनको वापस वहाँ पे भेज दिया जाता है एज सुन एज द वर्क गेट्स कंप्लीट। सो दिस इज नोन एज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। इसके अंदर जनरल मैनेजर है, उनके नीचे 4 डिपार्टमेंटल मैनेजर्स है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और रिसर्च डेवलपमेंट। तो इनका ये जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स का काम है कि टॉप टू लाइन जो वर्क बेस्ड है वो चलता रहे। तो ये पर वर्क बेस्ड जा रहा है, दिस इज योर वर्क बेस्ड। और दिस इज एक प्रोजेक्ट नंबर 1 के लिए एक मैनेजर बनाया, उसका काम है कि प्रोजेक्ट कंप्लीटली चलता रहे। अगर उसके लिए उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हेल्प चाहिए तो वो ले सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली काम करेंगे, प्रोडक्शन मैनेजर वर्टिकली काम करेंगे। क्लियर? इसको एक एग्जांपल से बेटर समझते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन। आपके स्कूल के एनुअल फंक्शन के अंदर सपोज अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग सेक्शन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, प्री प्राइमरी। ओके, तो जो क्लास टीचर्स है, जो इनको कल्चरल डांसेस के लिए फॉर्म किया गया है, उनका काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, उनका काम है स्ट्रेट, उनको पर्टिकुलर एक क्लास दी गई है, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करें तो अगर एंकरिंग के लिए है तो एंकरिंग के लिए कोई टीचर प्राइमरी से भी सिलेक्ट हो सकता है, कोई टीचर सेकेंडरी से भी सिलेक्ट हो सकता है, कोई टीचर सीनियर सेकेंडरी से भी सिलेक्ट हो सकता है। तो सीनियर सेकेंडरी जो टीचर सिलेक्ट होकर प्राइमरी पे ध्यान रखने के लिए आया है फॉर एनुअल फंक्शन, क्या एनुअल फंक्शन की तैयारी कराने के लिए आया है, तो उनका काम क्या होगा कि एनुअल फंक्शन तक वो प्राइमरी में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे और उनका पूरा काम कराएंगे। और एज सुन एज एनुअल फंक्शन प्रॉपर खत्म हो जाता है, टाइम पे सारा काम खत्म हो जाता है, तो प्राइमरी से जो उनको अथॉरिटी, पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो खत्म होते ही दे विल बी बैक टू द सीनियर सेकेंडरी डिपार्टमेंट। सो उनको कुछ टाइम के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया था, हालांकि वो सीनियर डिपार्टमेंट से थे, सीनियर सेकेंडरी डिपार्टमेंट से थे, लेकिन उनको प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया था तो उनका काम था पूरे प्रोजेक्ट की टेक केयर करना। क्लियर? दिस इज द वे दैट मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म। नेक्स्ट इज decentralization. Now what is decentralization? Thoughts of decentralization are very important from the viewpoint of authority and responsibility. The administrator has to decide themselves to have centralized or decentralized power in the organization. The idea formed in advance, the benefit can be obtained. Small size organization can have centralized power and the large size organization can have decentralized form of power. The idea of centralization is very important for any kind of organization from the viewpoint of authority and responsibility, from the viewpoint of sharing the authority or responsibility. And whosoever is the administrator have to decide themselves that they want to go with the centralized power or decentralization of power. And if the idea is formed in well in advance, then it will be helpful, and it is always preferable that for small organization to go with centralization of power and for large organization to go with decentralized form of power. तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट में है टॉप लेवल में, उनको ही खुद से डिसाइड करना चाहिए कि उनको सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ पावर के साथ जाना है या डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ पावर के साथ जाना है। और एक चीज़ बहुत श्योर है कि ये चीज़ वो जितनी जल्दी सोच लेंगे और जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे उतना ही बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। और प्रिफरेबल ये कहता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो यू कैन गो विद सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ पावर। अगर आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, साइज ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम है, तो आप सेंट्रलाइज पावर के साथ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फॉर्म ऑफ पावर के साथ जाना चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट इज डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ पावर? सो delegation of power from top to bottom level in orderly manner is known as decentralization of power. When the power is flowed from top to bottom in proper order, in proper manner, then it is known as decentralization of power. Decentralization power क्या है? Delegation. Delegation का मतलब हमने पहले भी समझा था कि delegation means sharing of power. Sharing of power टॉप लेवल टू बॉटम लेवल एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर ऑर्डर में होता है, टॉप टू मिडल, मिडल टू बॉटम, बॉटम टू वर्कर्स। सो अगर तो उसको हम बोलते हैं
delegation or decentralization of power. Decentralization of power. Now what is the definition of this? According to Henry Fayol, to assign power to the subordinates and to enable distribution of works and to include them in decision making process is called decentralization. Decentralization not only sharing of power, it is to assign the power to subordinates, juniors, to enable distribution of work and to include them in decision making process. So it is known as decentralization. डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि तीन चीज़ों के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ है. क्या? एक तो पावर ऑलरेडी शेयर करना सबऑर्डिनेट के साथ, जूनियर्स के साथ. सेकंड, उनको जवाबदारी देना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि वो खुद का काम डिस्ट्रीब्यूट कर सके या कोई भी काम डिस्ट्रीब्यूट करने की उनको पावर देना. एंड थर्ड, कि उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करना. अगर तीन चीज़ें होती है तो हम ये कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ है. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज डन. नेक्स्ट इज characteristics. Characteristics is quick decision. The person who has take decision involved in that group and has the power to take decision, the decisions are taken quickly and effectively. If decentralization of power is done, then the decisions will be taken quickly and effectively. Second is less workload. Decision making authority is given to middle and lower level of management, has the workload of at the top level reduced. As the power is shared, as the responsibility is shared, then the workload at the top level will be reduced. Third is increased motivation. The middle and it is bottom level. The middle and bottom level of managers are given independence to take decisions, and when these decisions are successful, they gain more confidence and more motivation, and they stay motivated. So it will increase the motivation if the decisions taken are correct. Next is increase in managerial abilities. The decision making power helps develops various managerial skills such as leadership, coordination, planning and controlling. The one who has been given power with the responsibility will develop their skills like leadership, coordination, planning and controlling. Next is effective control. Managers at all levels have enough power, so it becomes easy for them to take disciplinary actions and against those subordinates who commit mistakes. So the discipline is moreover increased, the control is moreover being effective and efficient. Next is harmony is created. All levels of employees are included in decision making process and they are also given due importance. So all level of officers and employees discuss the problems together. Proper decisions are then taken. So if the process in this process if one group comes into contact with another group, then this way harmony and mutual consent is created. Clear? So let us have a quick recap of characteristics of decentralization. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है? क्विक डिसीजन. कैसे क्विक डिसीजन? जैसे जैसे पावर शेयर होगी, जैसे जैसे अथॉरिटी शेयर होगी, तो जहाँ जहाँ छोटी छोटी चीज़ों पर डिसीजंस लेना होगा वो डिसीजंस क्विक ले सकेंगे, वो डिसीजन इफेक्टिवली और क्विकली लिया जा सके. फॉर एग्जांपल, in a school we have a three level of decentralization. First is director management, then director, then principal and then teachers. So for those decisions which can be taken by teacher, if the teacher are having power, then it will be taken quickly. अगर टीचर्स के पास पावर है तो डिसीजन तुरंत दे सके, लेकिन अगर टीचर्स के पास पावर ही नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ही नहीं हुआ, तो छोटे से छोटे डिसीजन के लिए भी आपको डायरेक्टर मैनेजमेंट तक जाना पड़ेगा. तो उसकी जगह अगर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ है तो योर डिसीजन विल बी टेकन क्विकली एंड इफेक्टिवली. नेक्स्ट इज लेस वर्कलोड. जब जब अथॉरिटी शेयर होती है, पावर शेयर होती है, तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर होती है. और डिसेंट्रलाइजेशन का एक एडवांटेज ये भी है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि टॉप लेवल का जो वर्कलोड है वो मिडल को और लोअर में डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो टॉप लेवल का काम जो है वो थोड़ा रिड्यूस होता है, उनका वर्कलोड कम होता है. नेक्स्ट इज इंक्रीज मोटिवेशन. अब इंक्रीज मोटिवेशन कैसे? जब जब मिडल लेवल या बॉटम लेवल मैनेजर्स को एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए पावर दी जाती है और वो जो डिसीजन लेते हैं वो सक्सेसफुल होता है, तो उनके अंदर ऑटोमेटिक एक कॉन्फिडेंस आता है, वो खुद एक मोटिवेट भी रहते हैं और दूसरे कलीग्स को भी मोटिवेटेड और हैप्पी रखने की ट्राई करते हैं. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन मैनेजेरियल एबिलिटीज. जैसे जैसे डिसीजन टेकिंग पावर बनती है, डिसीजन लेने की पावर उनके पास बनती है, साथ ही साथ में वो स्किल्स डेवलप करते हैं कि कैसे अलग अलग चीज़ों को मैनेज करना है, लीडरशिप कैसे करनी है, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, क्या प्लान करना है, कैसे कंट्रोल करना है. सो अगर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ है तो चांसेस है कि उनकी मैनेजरियल एबिलिटीज़, जिनको पावर मिली है उनकी मैनेजरियल एबिलिटीज़ सुधरेंगी, इम्प्रूव होंगी.
नेक्स्ट इज इफेक्टिव कंट्रोल. मैनेजर्स जो हैं अलग अलग लेवल पर सबके अंदर अगर पावर है तो सब मैनेजर्स ये ट्राई करेंगे कि उनके आज उनकी पावर रेंज में जो भी सबऑर्डिनेट्स या जो भी एम्प्लॉयज़ आते हैं वो कोई गलती करे नहीं, और अगर गलती करते हैं तो उनके पास पावर होगी तो डिसिप्लिनरी एक्शंस ले सकेंगे. तो इट विल इम्प्रूव द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. एंड लास्ट वन इज हार्मनी क्रिएटेड. हाउ हार्मनी इज क्रिएटेड? व्हेन डिसेंट्रलाइजेशन इज डन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मिलता है, कम्युनिकेट करता है, तो एक ग्रुप की प्रॉब्लम या एक ग्रुप के ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम दूसरे ग्रुप के ऑफिसर्स या एम्प्लॉय से डिस्कस होती है, दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं और इसकी वजह से ग्रुप के अंदर या इंटरनल यूनिट के अंदर, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मनी क्रिएट होती है. क्लियर? So this is all for today. In the next part, that is last part, we'll be discussing about delegation of authority and the concept on which basis delegation of authority can be done. Till then, go through this video properly, make notes. If you have any doubts, please feel free to ask. Stay home, stay safe, happy learning.